Now so far we have talked about the physiology of the hearing, but उसके बाद once the auditory nerve receive the sensations of the hearing, it has to transfer it to the auditory cortex. तो वो कैसे होता है? So without the electrical impulse are conducted to the CNS, it would be impossible to hear anything. So the auditory nerve fibers innervating the hair cells, they have their cell bodies in the spiral ganglion. This is the spiral ganglion, and this is the cochlear nerve. So the fibers of the auditory pathway, it passes to the cochlear division of the vestibulocochlear nerve, which is the 8th nerve, called as auditory nerve. So the fibers of the auditory pathway pass through the cochlear division of the vestibulocochlear nerve, called as auditory nerve. The hair cells, they become the receptor. Now when they leave as cochlear nerve fiber and enter the medulla oblongata, so this is the medulla oblongata. Okay, so when they leave as cochlear nerve fiber and enter medulla oblongata, they divide into two groups: ventral cochlear nucleus and dorsal cochlear nucleus. You can very well appreciate over here ventral cochlear nucleus and dorsal cochlear nucleus. Now see carefully. The lower one is the ventral cochlear nucleus, okay, the bigger one. So from the ventral cochlear nucleus, the fibers, it crosses the midline to the opposite side. ठीक है, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में अगर आप ध्यान से देखो, सो द फाइबर्स जो हैं इसमें देखो, इस वाले ओवल में, ठीक है, इट क्रॉसेस द मिड लाइन टू द ऑपोजिट साइड टू गो टू द सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. दिख रहा है आपको सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस? ठीक है, सो इट क्रॉसेस द मिड लाइन टू गो टू द सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. ओके, now superior olivary nucleus दोनों जगह पे है, left hand side and right hand side. Okay, so the fibers crosses the midline, cross भी कर रहा है midline को to go to superior olivary nucleus, and it is going on to the same side also. तो contralateral भी जा रहा है, ipsilateral भी है, both ipsilateral and contralateral. So the olivary nucleus, it will receive the input from both the ears. Okay, from the ventral cochlear nucleus this is happening. Again repeating, from ventral cochlear nucleus, the fibers crosses the midline to the opposite side to go to superior olivary nucleus, which is ipsilateral also and contralateral also. ठीक है, अब fibers from the dorsal cochlear nucleus, it goes to the contralateral nucleus. ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, जो ऊपर dorsal वाला है, the smaller one. Okay, so it goes to the contralateral nucleus, but ये आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये जाके जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस है, सी जो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस है, इट गोज टू द कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस. ठीक है, टू द कॉन्ट्रालेटरल न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस. ओके, इट डजंट गो टू द सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस. देयर इज अ डिफरेंस. फाइन, द फाइबर्स फ्रॉम द ऑलिवरी, अभी जो फाइबर्स हैं आपके ऑलिवरी न्यूक्लियस में से, अब ग्रीन फाइबर्स पे ध्यान देना. सो द फाइबर्स फ्रॉम द ऑलिवरी न्यूक्लियस, इट गोज टू द लेटरल. ठीक है, इट इज पासिंग, आर दे पासिंग और नॉट? यस, दे आर पासिंग थ्रू द लेटरल लेमिनिस्कस, द न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस. उसके नीचे देखो द लेटरल लेमिनिस्कस. So from the nucleus of the lateral lemniscus, it goes to the medial geniculate body of the thalamus. Okay, so पहले वो यहाँ साइनैप्स होगा, पहला जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स था वो चालू हो गया कॉक्लियर नर्व से, यहाँ पे फर्स्ट साइनैप्स हुआ, उसके बाद इधर हुआ. ठीक है, उसके बाद ये इधर हुआ, then it is going up to the medial geniculate body of the thalamus and the auditory cortex. The auditory cortex. Okay, so the one thing which you have to keep in mind, यहाँ पे जो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस है वो इप्सिलेटरल भी जा रहा है और कॉन्ट्रालेटरल भी, बट जो डॉर्सल है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड पे ही आगे बढ़ रहा है, and it is not going into the superior olivary nucleus.
So the dorsal one is going to the contralateral nucleus of the lateral lemniscus. These two places, contralateral गया और यहाँ से ये एक ipsilateral भी गया सेम साइड पे. यहाँ पे जो ventral cochlear nucleus है, they are traveling, but first वो superior olivary nucleus पे जाके synapse होंगे, वहाँ से green fibers are coming out, okay, and they are traveling through the nucleus and then they are finally synapsing in the medial geniculate body of the thalamus. The primary cortex area, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है, ब्रॉडमैन टर्म में उसको हम बोलते हैं एरिया 41 एंड एरिया 42. नाउ द टाइप्स ऑफ कंडक्शन जो कि हमने फर्स्ट 2 स्लाइड्स में बात करी थी, वी हैव द बोन कंडक्शन. सो द बोन कंडक्शन में द वाइब्रेशंस, so the bone conduction में it is the conduction of the sound wave through the middle layer by the bones. So it occurs when middle layer is affected. Now in this type of conduction, sound waves are transmitted to the cochlear fluid by the vibration set up in the skull bones. So bone conduction कैसे test करेंगे? It is tested by placing the vibrating tuning forks or any vibrating body directly on the skull. The vibrations of tuning fork are conducted to the skull to the temporal bone which is enclosing the cochlea. So the vibrations of temporal bone travel to the cochlear fluid. Then we have the air conduction, the conduction of sound wave through the air in the middle layer. Air conduction is common in the otosclerosis, which is the disease associated with the fixation of the stapes to the oval window. And then we have the ossicular conduction, which is the conduction of sound wave through the middle layer by the auditory ossicles. Okay, the 3 types of conduction from the external to the internal layer. Normally, air conduction is more efficient than bone conduction, but in conduction deafness, the normal mode of conduction, that is the air conduction, is impaired. ये पॉइंट्स आपको अभी क्यों बता रहे हैं, ये आपको बाद में अभी when we'll talk about the applied aspect तब आपको काम आएंगे. So air conduction always better होता है bone conduction में, because through air, क्योंकि through it the sound wave travel through the air in the middle layer and the inner ear, जिसकी वजह से a person can hear better as compared to bone conduction. But conduction deafness में क्या होता है, आपका middle layer impaired है, पूरा खराब हो चुका है. So जो normal mode होता है आपका conduction का, sound conduction का, that is air conduction, वो impaired हो जाता है, वो खराब हो जाता है. The conduction deafness does not impair bone conduction. Bone conduction से कोई लेना देना नहीं है conduction deafness का, because that does not require the participation of the external or the middle layer. Bone conduction में सिर्फ और सिर्फ inner ear के काम आता है, ठीक है, because inner ear is surrounded by the temporal bone. So conduction deafness does not require the participation of the external or the middle layer. Therefore, in an ear having conduction deafness, bone conduction may be better than the air conduction. Understand these words. So जिसमें conduction deafness होगा, conduction deafness मतलब आपका air conduction खराब हो चुका है, तो कंडक्शन डेफनेस आपका एयर कंडक्शन खराब हो चुका है, वहाँ पे उस इंसान को बोन कंडक्शन से बेटर सुनाई देगा. दैट इज वाई बोन कंडक्शन मे बी बेटर देन द एयर कंडक्शन. एंड इन अ यूनिलैटरल कंडक्शन डेफनेस, बोन कंडक्शन इन द डिजीज्ड एयर इज बेटर देन द नॉर्मल एयर. मतलब अगर सपोज करो आपका राइट साइड का एयर कंडक्शन खराब हो चुका है, कंडक्शन डेफनेस. अब हम एयर कंडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम कंडक्शन डेफनेस बोलेंगे. तो कोई भी एक साइड मान लो, इन यूनिलैटरल कंडक्शन डेफनेस, बोन कंडक्शन जो होगी आपके डिजीज्ड एयर में, अगर आपको राइट साइड का एयर खराब है, तो बोन कंडक्शन इन द डिजीज्ड एयर इज बेटर देन द नॉर्मल एयर. द रीजन वाई, बिकॉज नॉर्मल साइड में क्या होगा, द साउंड विच इज ट्रांसमिटेड बाय द बोन कंडक्शन, ठीक है, नॉर्मल साइड में क्योंकि आपका वो कान पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें आपका बोन कंडक्शन भी काम कर रहा है और एयर कंडक्शन भी. सो द साउंड विच इज ट्रांसमिटेड बाय द बोन कंडक्शन इज मास्क्ड. मतलब बोन कंडक्शन के जो भी साउंड्स हैं वो दब जाते हैं बाय द अदर साउंड्स रीचिंग द एयर बाय द एयर कंडक्शन. यू अग्री? बट
जो डिजीज्ड साइड है, डिजीज साइड मतलब वहाँ पे आपका एयर कंडक्शन काम नहीं कर रहा, कंडक्शन डेफनेस हो रखी है, तो मास्किंग इफेक्ट चला गया, इट इज लेस और वेरी नेग्लिजिबल, सो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द बोन कंडक्शन. नाउ जो भी साउंड बोन कंडक्शन से आ रहे हैं वो उस इंसान को बेटर सुनाई देंगे. क्यों? क्योंकि उसका एयर कंडक्शन खराब हो चुका है, उसको कंडक्शन डेफनेस है उस एयर में. सो इस वजह से डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि आपको किस ईयर में कंडक्शन डेफनेस प्रॉब्लम हो रही है, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू थिंग्स याद रखो, बोन कंडक्शन मतलब आपके बोन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, एयर कंडक्शन मतलब आपके मिडिल ईयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है. कंडक्शन डेफनेस का मतलब ये होता है कि आपका एयर कंडक्शन खराब है, ओके. बट कंडक्शन डेफनेस में आपका बोन कंडक्शन खराब नहीं होता. वाई? बिकॉज बोन कंडक्शन में एक्सटर्नल और मिडिल ईयर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर का होता है, जिस इज सराउंडेड बाय द टेम्पोरल बोन. अब याद रख एक और चीज, यूनिलैटरल कंडक्शन डेफनेस में, कंडक्शन डेफनेस मतलब जिसका एयर कंडक्शन खराब हो चुका है. तो सपोज करो जिसका राइट ईयर खराब है एंड दैट पर्सन गोज टू अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर जब कुछ टेस्ट करेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसके राइट साइड में जो इसका ईयर खराब हो चुका है वहां पे उसका बोन कंडक्शन इज बेटर. द रीजन, क्योंकि नॉर्मल ईयर में आपको जो बोन कंडक्शन से जो भी आपको साउंड पहुंच रहे हैं वो मास्क हो रखे हैं आपके एयर कंडक्शन से. मास्क मतलब वो छुप जाते हैं, वो कम हो जाते हैं बाय द साउंड रीचिंग द एयर बाय द एयर कंडक्शन. बट जो कान खराब हो चुका है, जिसका एयर कंडक्शन खराब हो चुका है, वहाँ पे मास्किंग इफेक्ट है ही नहीं, सो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द बोन कंडक्शन. So coming to the defects, we have conduction deafness and we have the nerve deafness. In the conduction deafness, the sound cannot be conducted to the cochlear receptors, especially the hair cells, because it involves the inner ear. Understood? So the common cause of conduction deafness are the wax in the inner canal, perforation हो सकती है tympanic membrane की, inflammatory disease of the middle जिसको हम बोलते हैं otitis media, या फिर immobility of the ossicle जिसको बोलते हैं otosclerosis, fixation of the stapes bone. And then we have the nerve deafness due to an injury to hair cells or the auditory nerve or the auditory pathways. Very loud sounds can cause a temporary shift in the threshold of the hearing due to the reversible damage of the hair cells. And generally, the nerve deafness is a part of the aging process. And this aging process को हम बोलते हैं प्रेसबाइकेसिस. ओके, नर्व डेफनेस. तो कंडक्शन डेफनेस समझ में आई गई आपको, जहाँ पे साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द कॉक्लियर रिसेप्टर्स एफिशिएंटली. एंड द नर्व डेफनेस जहाँ पे ऑलरेडी नर्व या फिर हेयर सेल्स को डैमेज हो चुका है. नाउ हाउ टू इवेल्युएट द ऑडिटरी फंक्शन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो क्या करते हैं कि फाइंडिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द पेशेंट कैन हियर द टिकिंग ऑफ अ वॉच एंड कंपेयरिंग इट विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फॉर अ नॉर्मल पर्सन. ये सब बेड साइड टेस्ट होते हैं. देन कमिंग टू द मेन टेस्ट, वी हैव द रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट एंड द Schwabach test and the audiometry. Now in the Rene test, जो tuning fork है, it is placed on the mastoid process to allow the bone conduction. ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको mastoid process पे रखा, now अब आप उस पेशेंट से पूछोगे कि उसको कब तक वो साउंड सुनाई दे रहा है. टू अलाउ द बोन कंडक्शन टिल इट कैन बी हर्ड. नाउ इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द ear to allow the air conduction. The tuning fork is placed on the mastoid process until the subject cannot feel the vibration and hear the sound
देन इट इज प्लेस्ड नियर द ईयर ऑन द सेम साइड. तो इन नॉर्मल ईयर में क्या होगा, या फिर जिस ईयर में नर्व डेफनेस है, it should be possible to hear the tuning fork for some more time because air conduction always better than the bone conduction. Now you agree with this thing, okay? तो क्या करते हैं कि जैसे ही डॉक्टर पहले आपके मैशर प्रोसेस पे रखेगा ट्यूनिंग फोक और वो टाइम नोट करेगा आपको वो कब तक बोन कंडक्शन का जो टाइम है वो कब तक सुनाई दे रहा है. जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे बोन कंडक्शन सुनाई देना बंद हो गया, वो आपके कान के पास लेके आएगा उसको, तब भी आपको सुनाई देगा बिकॉज योर ईयर इज नॉर्मल. तो वो दोनों का टाइम मैच करेगा. एंड फिर ऑफकोर्स आपका एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन. तो नॉर्मल हियरिंग में क्या होगा, एयर कंडक्शन का टाइम इज ट्वाइस टू बोन कंडक्शन. फाइन. बट जिसको कंडक्शन डेफनेस है, मतलब जिसका एयर कंडक्शन खराब है, सो बोन कंडक्शन इज बेटर देन द एयर कंडक्शन उस कंडीशन में. सो जब अगर किसी को कंडक्शन डेफनेस है, मतलब जिसको किसी को भी एयर कंडक्शन की प्रॉब्लम है, तो ट्यूनिंग फोक आपको मैक्सिमम कब सुनाई देगा, जब आपका मैस्टर्ड प्रोसेस पर रखा जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका एयर कंडक्शन तो खराब हो चुका है, तो आपको बोन कंडक्शन के थ्रू ही मैक्सिमम सुनाई दे रहा है. सो सी ओवर हियर, मैस्टर्ड प्रोसेस पे रखा एंड देन कान के पास रखा. मैस्टर्ड पे रखने से हम बोन कंडक्शन टेस्ट करते हैं और कान के पास से हम एयर कंडक्शन. नॉर्मल में एयर इज मोर देन बोन. अगर किसी को कंडक्शन डेफनेस है तो ऑफकोर्स, क्योंकि आपका एयर का जो मीडियम है वो खराब हो चुका है, आपका जो मिडिल लेयर है, तो बोन से आपको बेटर सुनाई देगा. क्योंकि आप जब मैशर प्रोसेस पे रखोगे तो वो टाइम विल बी मोर एज कम्पेयर टू एयर. एंड अगर आपको नर्व डेफनेस भी हुई तो तब भी आपको एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन, क्योंकि नर्व डेफनेस में इट इन्वॉल्व्स द इनर ईयर. ठीक है. और इनर ईयर सराउंडेड बाय द टेम्पोरल बोन, तो आपका बोन कंडक्शन वैसे ही वहां खराब हो जाना है. दैट इज वाई वहां पे एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन. Now the next which is the Weber test. यहाँ पे the tuning fork is placed on the vertex of the skull or the middle of a forehead. Normal person क्या करेगा? The sound is heard equally well on both the sides. Okay, both the sides. या तो ये हो सकता है कि आपको किसी एक ईयर में बेटर सुनाई दे, इधर राइट और लेफ्ट, या फिर हो सकता है कि आपको इक्वली दोनों कानों में बेटर सुनाई दे. नाउ यूनिलैटरल कंडक्शन डेफनेस, मतलब अगर डेफनेस एक कान में है तो साउंड इज हर्ड लाउडर इन द डिजीज्ड ईयर, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इन अनअफेक्टेड ईयर देयर इज अ मास्किंग इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल नॉइज. सो द साउंड through the bone conduction is not heard as clearly as on the affected side. This is the reason because environmental noise का ऑलरेडी एक मास्किंग इफेक्ट होता है, बाहर के आसपास की ऑलरेडी चीजें चल रही होती हैं. सो आपका बोन कंडक्शन इज नॉट हर्ड एज क्लियरली एज ऑन द अफेक्टेड साइड. इन द अफेक्टेड साइड द साउंड इज लाउडर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मास्किंग इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल नॉइज. क्योंकि आपका मिडिल ईयर उस एनवायरमेंटल नॉइज को मास्क नहीं कर पा रहा, तो आपको बोन कंडक्शन जो है वो, मतलब आपका जो बोन के थ्रू जो साउंड है वो बेटर आएगा. ठीक है. अगर किसी को यूनिलैटरल नर्व डेफनेस है, द साउंड इज हर्ड लाउडर इन द नॉर्मल ईयर, नॉट इन द डेफ ईयर, ऑफ कोर्स. सो द स्क्वाबैक टेस्ट, the vibrating tuning fork. So now Weber test में आपको ये ध्यान रखना है कि there is equal sound on both the ears. बट किसी को अगर बोन लॉस है या कंडक्टिव लॉस है
तो साउंड इज हर्ड बेटर इन द एबनॉर्मल ईयर, जिसको ऑलरेडी आपको बताया था रीजन, बिकॉज ऑफ द मास्किंग इफेक्ट. ओके, नाउ अनदर टेस्ट इज द स्क्वाबैक टेस्ट. इसमें क्या होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्लेस फर्स्ट ऑन द पेशेंट्स का मास्टॉइड, देन ऑन द मास्टॉइड ऑफ अ नॉर्मल कंट्रोल. ये क्या करेगा, दिस विल कंपेयर द पेशेंट्स का बोन कंडक्शन विद द नॉर्मल बोन कंडक्शन. ओके, नॉर्मल में तो ऑफकोर्स दोनों के सेम होंगे. किसी को कंडक्शन डेफनेस है तो पेशेंट का विल बी मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल. वाई पेशेंट का बोन कंडक्शन विल बी मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल सब्जेक्ट. द रीजन इज क्योंकि उस पेशेंट में ऑलरेडी उसको एयर कंडक्शन, उसका कंडक्शन डेफनेस है, मतलब उसका एयर कंडक्शन खराब हो चुका है. ठीक है, तो उसको बोन कंडक्शन कितना क्लियरली सुन रहा है. नॉर्मल में आपको एयर कंडक्शन भी है, बोन कंडक्शन भी है, एनवायरमेंटल नॉइज भी है, बट यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा आपको मिडिल एयर के थ्रू, तो आपको बोन कंडक्शन बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है. दैट इज वाई उसका स्कोर इज मोर देन द नॉर्मल वन. एंड नर्व डेफनेस में ऑफकोर्स नॉर्मल इंसान विल, द नॉर्मल पर्सन विल लिसन मोर क्लियरली एज कम्पेयर टू अ पेशेंट. एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री, विच इज टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर एंड द सिवियरिटी ऑफ द ऑडिटरी डिफेक्ट. इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ऑडियोमीटर. नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग द साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट. जब पेशेंट को टेस्ट करते हैं तो लाउडनेस बढ़ाते हैं एक एक फ्रीक्वेंसी पे अबव द जीरो लेवल. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमेशा एक्सप्रेस होती है डेसिबल में. सो इसमें डिटरमाइन क्या करते हैं कि हियरिंग थ्रेशोल्ड फॉर द रेंज ऑफ 125 टू 8000 हर्ट्ज. एक एक करके साउंड देंगे दोनों कानों में, टू बोथ द ईयर्स एंड बाय बोथ द रूट्स इन सक्सेशन. द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड ग्राफिकली. तो ग्राफ जो होता है इट शोज द हियरिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द सब्जेक्ट इन रिलेशन टू द नॉर्मल थ्रेशोल्ड. नॉर्मल थ्रेशोल्ड एक डेटा से ऑलरेडी पहले सब्जेक्ट्स में टेस्ट वेस्ट करके एक ऑलरेडी डेटा बना हुआ है. एंड नॉर्मल थ्रेशोल्ड इज डिपिक्टेड एज 0 डेसिबल इन द ग्राफ. सो अगर किसी को 20 डेसिबल का लॉस है, हियरिंग लॉस है कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उसका मतलब ये हुआ कि द साउंड एट दैट फ्रीक्वेंसी इट हैड टू बी मेड एटलीस्ट 20 डेसिबल लाउडर. मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे जो साउंड आप दे रहे हो और उसको वो अगर नहीं सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स आपने नोट किया कि 20 डेसिबल उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वही साउंड उस फ्रीक्वेंसी पे आपको 20 डेसिबल एटलीस्ट आपको और लाउडर करना पड़ेगा फॉर द पेशेंट टू हियर इट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन. द साउंड एट दैट फ्रीक्वेंसी हैड टू बी मेड एटलीस्ट 20 डेसिबल लाउडर. तो ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड है कि भाई आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो कि इंटेंसिटी है, डेसिबल है, एंड एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है. सो इस फ्रीक्वेंसी पे इतना इंटेंसिटी है, अ नॉर्मल पर्सन कैन लिसन. ओके, अब इसमें क्या है, इस ग्राफ में जैसे टेस्ट किया तो एयर कंडक्शन इज डिपिक्टेड बाय सर्कल्स एंड बोन कंडक्शन बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखो एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन. ओके, सो एयर कंडक्शन इन द राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों का टेस्ट किया इन लोगों ने. राइट ईयर को उन्होंने 0 से सिंबल किया और लेफ्ट ईयर को उन्होंने क्रॉस से सिंबल किया, और बोन कंडक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट से. सो इन द फर्स्ट ग्राफ आपको और कुछ मत देखो, आप डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट सी कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन द बोन कंडक्शन. एक ग्राफ में दिख रहा है आपको. दूसरा ग्राफ में देखते हैं, इसमें बोन कंडक्शन इज बेटर देन द एयर कंडक्शन. ठीक है, बोन कंडक्शन क्योंकि बेटर हो गया, बोन कंडक्शन का डिपिक्शन था स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ये एयर कंडक्शन है. दिस वन इज द एयर कंडक्शन. ओके, तो अब बोन कंडक्शन बेटर देन द एयर कंडक्शन. ये कब होता है, ये कौन सी कंडीशन में होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ द कंडक्शन डेफनेस. कंडक्शन डेफनेस, वहाँ पे आपको बोन कंडक्शन बेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द air conduction. So you do not have to get much into all these audiometry. This is just a basic test, but you should be knowing about Rene and Weber test. ये सब पूछते हैं वाइवा में. How do they do and how to evaluate them. So thank you all. This is the completion of the special sense ear.